بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں آپ کا ہوم ورک، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایک فارمولہ سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دانش صاحب کا کام ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ عاملو یہ فارمولہ ویسے نہیں تھا ہمارا، سب کے اوپر جو زبر تھا، ہاں نیچے، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ نیچے والا جو ہے صابرو، یہ صابرو یہ اس قاعدے کے مطابق ہے جو ہم نے اس دن پڑھا تھا، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے عاملو، چونکہ ہم نے اس کا واحد پڑھا تھا اور سنگولر میں جو ہے وہ م، درمیان والے حرف کے نیچے زیر بھی آتی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی آتی ہے، تو اسی سے یہ جمع بنتی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور چونکہ دانش صاحب پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اس لیے ان کو یہ چیز پتہ تھی اور انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ سے، دونوں ٹھیک ہیں، بہت اچھا۔ آہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح صدقو بھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اسی طرح قاعدے کے مطابق ہے، آخر میں الف، اس سے پہلے سکون واو کے اوپر، پھر اس سے پہلے پیش، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سب نے سچ کہا، عاملو ان سب نے عمل کیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس میں۔ ظلمو ان سب نے ظلم کیا، بالکل ٹھیک۔ کسبو ان سب نے کمایا، بالکل ٹھیک ہے، بہترین، خوبصورت۔ تابعا اب یہ واحد ہے، تابعا یا تین حرف ہوں گے، ان تینوں کے اوپر زبر ہونی چاہیے، یا پھر درمیان والے کے نیچے زیر یا اس کے اوپر پیش، یعنی باقی سب اسی طرح رہے گا، تو یہ بالکل زبردست ہے۔ تابعا کا مطلب ہے اس نے فالو کیا، اس نے اتباع کی۔ کفرو ان سب نے انکار کیا، یہ لفظ ہے ولا تلبسو، یہ غلط ہے، تلبسو غلط ہے، چونکہ یہ ہمارے فارمولے کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہمیں فارمولہ ہمارا کیا تھا، یہ دیکھو میں دکھاؤں آپ کو، ہمارا فارمولہ تھا یہ فاعل، ایسے تین حرف لے لیں، کوئی بھی تین حرف ہو سکتے ہیں، تو سب کے اوپر زبر، یہ اگر اس طرح کے لفظ تلاش کرنے تھے ہم نے، جیسے خارجا، دخلا، اس طرح کے الفاظ تلاش کرنے تھے، تو اس نے کیا۔ اب پھر اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ بھئی درمیان والے کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا تابعا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے، تو وہ بہت کم ہے، جیسے میں نے کہا تھا آپ کو بہت کم ہے، کاروما، تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اب پھر میں نے کہا اس کی جمع بنائے، ان سب نے کیا، یہ ماضی میں، اب یہ ہے کہ ان سب نے کیا، تو اس کا ایک یہ فارمولہ یہ تھا فعلو، ان سب نے کیا، تو عین وہی ہے، اوپر والا عین ہے، اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن باقی وہی رہے گا۔ اب اس فارمولے کے، اس کے اوپر اگر آپ یہ چیز سانچہ ہے، یہ نا فارمولہ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں تلبسو کو ڈالیں تو تلبسو اس کے اوپر نہیں آئے، ہاں اگر یہ ہوتا نا لبسو تو پھر ٹھیک تھا، لبسو نہیں ہے یہ تل، تو یہ غلط ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دانش بھائی کو یہ چیزیں پتہ ہے، لیکن میں ویسے ریکارڈ کرنے کے لیے اور جو بچے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ عاملو بار بار آ رہا ہے، عاملو، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ کیا یہاں پہ ہمارے پاس اور لفظ نہیں ہے اس طرح کا جس میں ہمیں ماضی مل جائے؟ جعلا، یہ دیکھیں جعلا ہم نے اس دن پرسوں کیا تھا ہم نے، تو وہ پرانا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اور بھی ہے کوئی، میں دیکھا نہیں، اس وقت میں دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ اخرجا، خاراجا، وہ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ کہ ہمارا یہ آج کا ہوم ورک نہیں تھا، یہ ہمارے 2 دن پہلے کا ہوم ورک تھا، اس کا میں نے ساتھ پیسے ملا دیے، تو وہ خارجا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اب انشاءاللہ کل آپ ہوم ورک کریں گے انشاءاللہ، جو آج ہوم ورک دے رہا ہوں منیبہ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں طرح یہ اچھا، اس میں دیکھیں عاملہ ٹھیک ہے، لیکن قالو ٹھیک نہیں ہے، اور قالو ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک، لیکن یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو یہ غلط ہے، اس لیے قالو نہیں، اس میں الف کہیں درمیان میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا جیسے ہم
जो पढ़ा था ना उसी को हम फॉलो करेंगे। तो ये कालू कालू उस फार्मूले के तहत ठीक नहीं है। ताबिआ ठीक है। कफरू बिल्कुल ठीक है। खराजू बिल्कुल ठीक। कालू कालू गलत। आलिमा, आलिमा उसने जाना, बिल्कुल ठीक है। अब देख रहे हैं ना आपको दरमियान वाले हर्फ के ऊपर पेश नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो बहुत रेयर है, कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। कफरू ठीक है। कफरू कानू वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गलत इस वजह से, इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमने अभी नहीं पढ़ा। तो जो नहीं पढ़ा ना वो बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम उसको गलत कह रहे हैं। ये कानू कालू सब हैं तो ठीक, लेकिन गलत है। चैलेंज ठीक हो गया। बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। आपने 15 16 17 18 18 के करीब आपने जो है वो पेजेस से आपने बहुत सारे जो है वो मिसालें दी हमें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, और टाइम भी दिया आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है भी थर्सडे को आपने किया काम, तो बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ये हमारे हेरा, अच्छा हमारी हेरा है, हमारी हेरा तो है, लेकिन ये इससे फिर तरह तरह ने कुछ किया है काम। तरह ने क्या किया है? जबरदस्त पेश, हाँ ये भी था ना, लेकिन ये असल में ये होमवर्क नहीं था, ये तो आपका आपका अपना जो है वो रफ कॉपी में आपने लिखना था इसको। तो ये ठीक है, लेकिन ये जाल नहीं है, ये जे है, जे जा जा जबर जा से है, ठीक है। पेश जजम शद, ये बिल्कुल ठीक है। अलिफ व हुर्फ इल्लत है, तो इसके अलावा सारे क्या है? सही है। हुरूफ सही जो है वो सारे बाकी हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं इसको। ऊपर तलहा भाई ने वो काम किया है जो हमने उनसे कहा था, और ये भी थर्सडे को किया है, तो ये शाबाशी के काबिल है। इन्होंने देखा, तलाश किया है वासाका। वासाका, वासाका का मतलब है जो वो सिमटती है। वाह क्या बात। दूसरा तरफ तलाश किया है। मैं समझ चाह रहा हूँ कि आप ना पहले पारे को मश्क बनाएं, पहले पारे को आप उसमें ज्यादा काम करें, और ये आखिरी पारा तो स्पेशली जो है ना रिच है, तो इसलिए उसको छोड़ दें फिलहाल। और मैं वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, पहले पारे को आप जरूर तलाश करें ताकि आपको सारा आता हो। ये लफ्ज है फतनू, बिल्कुल ठीक है। फतनू, वो सब आजमाइश में, फितने में डाले गए। फिर ये है लफ्ज हमारे पास बाखेला, बहुत खूबसूरत लफ्ज तलाश किया है। बाखेला, उसने बुखल किया, उस एक ने बुखल किया। जमा, उसने जमा किया, क्या बात। फाला, हाँ कैफ फाला, उसने किया। कफरू, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह फतहा, बिल्कुल ठीक। आलिमा, आलिमा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह गलबू, ज़लमू, ज़लमू ठीक है। अगर गलबू होता वो भी ठीक था। काफरू ठीक है। पहले पारे से ही किया है, लेकिन पहले पारे में इतना कुछ मिलता नहीं है। मिलता नहीं था आपको, ठीक है। हाँ वो, पूरा मैंने वो पढ़ के फिर उसके बाद हाँ असल में ये तो अगर आप उस लिहाज से सोचें कि अगर एक बंदा पहली दफा पढ़ रहा है, अभी उसको 3 दिन हुए हैं, तो उसके लिए तो पहला पारा ही काफी है, और वो अच्छा आसान है असल में। लेकिन अच्छा है, वो कहीं से भी आप तलाश करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। आपने बहुत अच्छा किया, 8 9 10 11 पेजेस आपने, और उसमें बहुत सारे आपने मिसालें जमा की। 14 पेजेस किए हैं हेरा ने। हेरा ने पहले तो ये अपना होमवर्क दिखाया है कि मैंने कलर्स किए हैं। देखो ये कलर्स नहीं होते, सबको बता रहा हूँ मैं, सब सब सुन ले भैया हबाब। आपने लिखना ही कलर से, कलर नहीं करना उसके ऊपर। आपने लिखना ही कलर से है, तो कलर आपने मार्कर ले लेने हैं और खूबसूरत लेके ना आपने उसी से लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश के लफ्ज आ रहे हैं, या कोई आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, या अरेबिक को अलग कलर में लिखें और उर्दू को अलग कलर में लिखें, तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे, जिससे याद करना आपके लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये शानदार है, बहुत शानदार है। आप अगर ये भी कर सकती थी कि फ़ाला फ़इला फ़उला फ़अलू, एक ही लाइन में इनको लिख देती ना, और सबके ऊपर हार्ट बना देती, या फिर उसको ऐसे ना बादल बना देती, तो वो आपको कम से कम फार्मूले तो क्लियर हो आपको बस। वो फिर नीचे सारी मिसालें आ जाएंगी, वो भी ठीक है। इस तरह डिजाइनिंग बहुत ज्यादा किया करें। और एक खास बात, उसके ऊपर ना डेट लिखें कि मैंने ये किस डेट को पढ़ा है, मैंने कब पढ़ा था, मैं कितनी छोटी सी थी जब मैंने ये पढ़ा था। तो ये होना चाहिए। छोटी रहेंगी आप तो सारी उम्र, लेके मुनीवा भी छोटी है, लेकिन ये है कि आप लिखें, तारीख जरूर लिखें। अरबी हरूफ तहज्जी लिखा है आपने, हरूफ सही। अब देखो ना, हरूफ सही दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मेरी आंखें वैसे ही मेरा तो कमजोर है मेरी। हरूफ इल्लत, तो आपने कदर से ये लिखना है। 25 हैं और बाकी 3 हो गए, तो ये कुल मिला के 28 हरूफ हैं। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा बताओ, हेरा बताओ, झगड़ा किस चीज का है? कुछ लोग कहते हैं 29 है।
सर वो उसका था हमजा। हमजा, हमजा क्या हमजा करता है? हमजा अलिफ के ऊपर हरकत हो। अलिफ के ऊपर हरकत हो तो हमजा क्या करता है? एक अलिफ था और एक हमजा था। अच्छा, वो मुझे याद नहीं आ जी। हमजा तो ठीक है, हमजा तो नाम है लड़के का, लेकिन अलिफ खान नाम हो सकता है। अलिफ गुल भी है, यहाँ पे बहुत सारे हैं अलिफ गुल। अम, चले सर छोड़, नहीं आ रहा। 1 मिनट, वो यहाँ पे मुनीबा है। मुनीबा बताओ जरा, ये कुछ लोग कहते हैं 29 हरूफ ताजी हैं, कुछ कहते हैं 28 हरूफ ताजी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। तो जब फतह आ जाता है अलिफ के ऊपर तो उसको ऐसा अलिफ नहीं पढ़ते ना, फिर उसको हमजा पढ़ लेते हैं। तो अगर जेर, शायद इस अगर अलिफ के ऊपर अगर जेर आ गए फिर क्या करेंगे? पेश आ गए? देर देर नहीं 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 नहीं, जो भी हरकत आती कोई भी है, हरकत आ जब जाए अलिफ के हरकत ऊपर, आती है तो ऊपर फिर ठीक है, उसको हमजा उसका हो नाम जाता बदल है। जाता है, हमजा हो जाता है। क्या बात बिल्कुल, है। तो तो हम इस ये वजह से हम ऐसा करेंगे कि हम लोग इसको 28 ही कंसिडर करेंगे, ताकि हमें आसानी हो तकसीम करने में, आगे आपको बहुत आसानी होकर आएगी इंशाल्लाह। बहुत ठीक, बिल्कुल अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तबिआ, हेरा ने बिल्कुल सही पहचाना है, तबिआ। इसके बाद है आमेला, बिल्कुल ठीक। फहिया, हाँ फहिया नहीं है, लेकिन इसको मैं कैसे आपको बता दूं? मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, देखो वो कालू वाला भी मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, उसकी वजह क्या? हरूफ इल्लत, अगर आपको याद हो, हरूफ इल्लत जो बीमार हरूफ हैं, कमजोर हरूफ हैं, ये जहां भी आएंगे ना, इसको ना छेड़ें, फिलहाल ना छेड़ें इसको। ये बड़े कमजोर हैं यार, बड़े छुई मुई किस्म के हरूफ हैं, इनको ना छेड़ें, बस कहीं भी आ जाएं इसको फिलहाल छोड़ दें। कैसे मैं बता सकता हूँ आपको? तो वही या गलत है, फहिया नहीं है। फलीमा, फलीमा, फलीमा भी नहीं है। असल में ये फा जबर फा जो होता है ना, फा जबर फा, ये इसका मतलब होता है तो, या पुरानी उर्दू में अगर आपको पता हो तो पस लिखा होता है, पस। इंग्लिश में कहेंगे 100। तो इसको भी फिलहाल छोड़ दो, ये भी ठीक नहीं। अरेना, हाँ ठीक है, अरेना ठीक है, चलें अरेना फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि अभी आपका यही फार्मूला है। तो सफेहा बिल्कुल ठीक है, सफेहा बिल्कुल ठीक है, सफेहा। लकू, लकू बिल्कुल ठीक। ज़लमू, ज़लमू, आलिमा बिल्कुल ठीक। आमिला ठीक है, फहिया नहीं है। धन्यवाद। कफरू ठीक है। अ, अच्छा, एक दफा जब एक कर लिया तो दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। कफरू कितनी दफा लेके आएंगे, कितनी दफा कफरू दिखाएंगे? वो तो बहुत ज्यादा है। सर पहले पहले बारे में बहुत मुश्किल से मिले मुझे। मैंने काफी दो दो तीन हाँ तीन चलो, दफा वो देखा तो जिस तरह ये बाकी लोग बाउंड्री से निकल गए हैं, तो आप भी निकल जाती, कहीं और से तलाश कर लेती, कोई मसला नहीं। खैर आप पहले पारे को जितना मिल जाए आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। सही। बहुत अच्छे, चलें बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो ये कि 3 बंदों ने काम किया, वो हमारे पीर साहब हैं। पीर साहब आए कि नहीं आए? पीर साहब, किड्स, माई किड्स पे आईपैड, ये किनका है जी, माई किड्स? ये नाम किनका नाम है यार? हरमैन शरीफैन, आपने जो है वो कहा था मैं होमवर्क करूंगी इंशाल्लाह, और एक कतरा नहीं भेजा आपने, एक लफ्ज नहीं भेजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर वो मुझे जिसमें करना था, मैंने स्पेशल वो खरीदी थी, बुक जो है वो खो गई। अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ, उस दिन से वो मिले तो मुझे उसी में स्टार्ट करना है, इसलिए। तो ये किताबों में नहीं है चीजें, ये तो मोबाइल में है, सारी मोबाइल से करते जी, हैं लोग। होमवर्क करना था ना, वो लिखना था जो आपने फिर तहजी वगैरह बताई। प्रोफे तहजी वगैरह तो आपको भूल चुके होंगे ना कि वो क्या चीजें थी, लेकिन इसमें काम वो नहीं हम करने वाले। खास काम ये है, हमारा जो मेजर काम है वो ये है कि कुरान मजीद को खोल के ना गौर फिक्र करना है। और वो यही था, मैंने जी, बताया, मोबाइल में जो कुरान मजीद आपके पास है, उसी के ऊपर आपने सर्कल लगाने हैं और वो भेज देने हैं। इतना सा काम। तो फर्स्ट पारे का भेजा था ना आपको, और भी करना है? कहीं से भी कर देती कुछ, अब क्या बातें कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कर देती कुछ तो फिर हम बात करते हैं ना, क्या लड़की है? अच्छा, ये आईपैड किनका है जी, आईपैड? आसमाटी है, कौन है ये? रिजवान भाई है, कौन है ये? माई किड्स आईपैड किनका है यार? खामोश यहाँ पे लिखो, खामोश सिपाही लिखें तो जरा आसानी रहेगी। क्या लड़के, क्या लोग हैं?
اچھا وہ پیر صاحب نہیں آئے، دیکھا آپ نے، پیر صاحب نہیں آئے، اور ہمارے دوسرے کون ہیں، ہمارے علی بھائی، محمد علی بھائی، وہ نہیں آئے، اور ہوم ورک بھی نہیں کیا انہوں نے۔ کچھ لوگ دیکھیں، آپ اگر آپ میں سے آپ میں سے ابھی تک ایک ہم نے 3 کلاسیں لی ہیں، آپ میں سے کون ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے کر پائیں گے، یہ جو کام ہے یہ ہم کر پائیں گے، اور ہم کرنا چاہتے ہیں چاہے کتنا ہی مشکل آ جائے، ایک سبق 2 دن میں کریں گے، ہفتے میں کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ آپ میں سے کون ایسا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ کریں طلحہ گے بھائی، انشاءاللہ سر، ہیرا بھی کہہ رہی، طلحہ اور ہیرا، بالکل۔ تو آپ 2 ہوں گے صرف تو کلاس میں، تو چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ 2 بھی ہوں گے تو پڑھنا چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اگر آپ 2 ہیں نا، اگر آپ 2 دیکھیں کہ باقی لوگ کام نہیں کر رہے، ہوم ورک نہیں کر رہے، یا غیر حاضری کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے توجہ نہیں دے رہے، دلچسپی ان کی نہیں ہے، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا ہر مین کی طرف باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو وہ ساری باتیں، یا پھر آئی پیڈ کی طرح جو ہے وہ خاموش ہیں، بالکل ہی خاموش، گونگے ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے نا آپ لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، بس اتنی سی گزارش ہے آپ کے ساتھ۔ جب میں ہوں آپ کے ساتھ، تو اگر آپ ایک طلحہ بھی ہے، میں ایک طلحہ کو پڑھاتا ہوں، دیکھو طلحہ ہے نا، اب میں اور طلحہ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہم دو صرف 2 ہوتے ہیں، ہماری کلاس ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہماری کلاس ہوتی رہی ہے، اور ہم سردی گرمی ہر وقت جو ہے ہم 2 ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ آتے گئے چلتے گئے، آتے گئے چلتے گئے، لیکن طلحہ نہیں ہٹا اپنی جگہ سے۔ تو ہیرا، آپ نے بھی نا اپنے طلحہ بھائی کے ساتھ جو ہے نا ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور کام کرتے جی رہنا، سر، کوئی کام نہ کرے، آپ نے سیم ڈے میں جیسے بتایا ہوا ہے نا، اسی آپ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھنا ہے، آپ نے پیروی کرنی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو انشاءاللہ۔ ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی رہتا ہے نا۔ بالکل۔ اچھا چلو، اب آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف، اور وہ کیا ہے جی، آج کا سبق جو ہے بڑا آسان قسم کا ہے، اور اکثر کے لیے بورنگ بھی ہوگا، چونکہ انہوں نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے بہت سارا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ شروع سے میں چاہتا ہوں کہ شروع سے پڑھا، یہ دیکھیں، یہ 4 لفظ ہیں، انا، انتا، ہوا، نحنو، یہ 4 لفظ ہیں، آپ نے 6 یاد کیے ہوئے تھے، میں یہ 4 اس میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب ہے میں، انتا تم، ہوا وہ، نحنو ہم، تو یہ 4 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آتے ہیں کیا؟ یہ سب کو آتے ہیں جی، منیبہ سمیت سب کو آتے ہیں؟ منیبہ چلی گئی کہاں؟ نہ آپ سب کو آتے ہیں یہ؟ جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے، سر میں یہی ہوں، میں گئی نہیں ہوں، آتے یہ ہیں آپ کا مجھے ہے، یہ۔ تو 1000 بار بلایا ہے آپ کو منیبہ، وہ کون؟ ایکچولی سر، ایکچولی آپ نے جب مجھے آواز دی تھی نا تو دوسرے فون پر نا میں اچھا ٹھیک ہے، فون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو تو اس وجہ سے نام چینج کر سوری۔ دو، نام چینج کر دو، نام چینج کر دو۔ اچھا جی، تو یہ 4 لفظ ہیں، سب کو آتے ہیں، منیبہ کو بھی آتے ہیں الحمدللہ، اور حرمین کو بھی سب کو آتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جن کو نہیں آتے، پہلے وہ 4 اس کو نا پکا کر لیں، اس کو پہلے، سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے۔ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن مجید میں سے پڑھنے لگے ہیں، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ تعوذ پہلے ذرا تفصیل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ فارمولہ دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے تعوذ، اس کا لفظ نام ذرا مشکل ہے، تعوذ۔ عربی میں نا جو بھی ایسے جملے ہوتے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے انہوں نے آسانی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں یار اعوذ باللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، ہم کہتے ہیں ایسے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ کو کہیں گے تعوذ۔ آپ کی آسانی کے لیے اور بھی بتا دوں گا آپ کو، تعوذ لفظ ہے تعوذ۔ جب بھی آپ کو مشکل لفظ نظر آئے گا دانش بھائی، ہمارا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انگلش میں رومن میں لکھنا ہے، تا عو، عین کے لیے آپ اے نہیں لکھ سکتے، اے لکھیں گے تو وہ الف بن جائے گا یا زبر بن جائے گی، اس لیے آپ نے عین کو الٹا لکھنا ہے، یعنی 3 لکھنا ہے آپ نے، تا عو، ایسے لکھو، ایسے ایسے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تا عو اور وز، تعوذ۔ اب میں نے چونکہ وہ کو ڈبل پڑھنا تھا، اس لیے ڈبلیو کو ڈبل لکھا ہے، لیکن ایک کے ساتھ ہے تو دوسرے کے ساتھ ہے، تعوذ۔ تو تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بسم اللہ کو کہتے ہیں بسملہ، بسملہ، یا تسمیہ بھی کہتے ہیں ہم، تسمیہ، اور یا پھر بسملہ، بسملہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون کو ترجیع بولتے ہیں، ترجیع،
इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते हैं तहलील। तहलील तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को। इसी तरह सुबहान अल्लाह को तस्बीह कहते हैं, सुबहान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह अकबर को तकबीर कहते हैं, तकबीर, तकबीर। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह को तहमीद कहते हैं, तहमीद। अल्हम्दुलिल्लाह को तहमीद। इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह को इस्तिगफार बोलते हैं, इस्तिगफार। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि बहुत सारे नाम चलते रहते हैं, और भी बहुत सारे होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं तावुज़। तावुज़ कुरान मजीद के शुरू में नहीं है। आप जब भी कुरान मजीद निकालेंगे देखेंगे तो तावुज़ नजर नहीं आएगा। लेकिन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान मजीद में हुक्म है इसका कि जब भी कुरान मजीद पढ़ने लगो तो तावुज़ पढ़ लिया करो, यानी शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। ये बड़ा जालिम है, बहुत ताकतवर है। हमारा जो दुश्मन है शैतान, बहुत बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। इसीलिए हमें उससे ज्यादा ताकतवर की तलाश है। और वो कौन है? वो उसके बनाने वाला, उसका खालिक, उसका मालिक अल्लाह जल्ल शानुहु है। तो हम अल्लाह जल्ल शानुहु की पनाह में आ जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने लगे हैं। इसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ, लेकिन हम पहला लफ्ज पढ़ेंगे आऊज़ु को, आज बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आऊज़ु जो है इसको तावुज़ या इस्तिआज़ा बोलते हैं, ठीक है। आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। अब देखिए अरबी में एक लफ्ज है, इस चीज को कहते हैं, यह बड़ी जामिअ जुबान है, जामिअ। एक ही लफ्ज से बहुत लंबा माना मुराद लिया जाना। तो आऊज़ो एक ही लफ्ज है, लेकिन इसका पूरा तर्जुमा है मैं पनाह मांगता हूँ। वो क्यों है? इस वजह से है, देखो कि इसमें जो अलिफ है ना, अलिफ, ये अलिफ जो है ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है अना को। अना बता रहा है कि इसमें अना है, यानी मैं। ये जो तर्जुमा मैं का हम कर रहे हैं वो अलिफ का तर्जुमा कर रहे हैं। फिर ये जो अलिफ आ जाता है किसी भी वर्ब के शुरू में, तो हम तर्जमा जो होंगे वो प्रेजेंट टेंस में करेंगे, पहले हाल में करेंगे। अभी हम पढ़ने लगे हैं इसको, अभी इसके बाद पढ़ने लगे हैं। तो इसलिए हम तर्जुमा कर रहे हैं हाल में कि मैं पनाह मांगता हूँ बिल्लाही। बिल्लाही असल में दो लफ्ज हैं, बा है अलग है और अल्लाह अलग है। हम बा को भी पूरा एक दिन देंगे इंशाल्लाह, बा के बारे में। तो बिल्लाहि, अल्लाह की। अब यहाँ पे बा का तर्जुमा हमने किया है की, लेकिन बा के 15 मतालिब होंगे, मानी होंगे कुरान मजीद में, इंशाअल्लाह ताला आएंगे हमारे सामने। हम खुद तर्जुमा करना शुरू कर देंगे और फिर उर्दू में जो भी लफ्ज आएगा उसके मुताबिक आएगा, वही हम तर्जुमे में इस्तेमाल करेंगे। चाहे यहाँ पे तर्जुमा क्या आता है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की आता है ना, और उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। मिन, अच्छा अल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह का तर्जुमा हम नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे इसमें जात है या इसमें जलालत है। ये मिन का मतलब होता है से, मिन का मतलब है से। शैतान, शैतान के बारे में हम पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। इसका वैसे यहाँ लिख देते हैं कि बहुत हलाकत वाला, रहमत से बहुत दूर, रजीम मरदूद है, भगाया हुआ, फेंका हुआ। तो ये है इसका लफ्जी तर्जुमा तावुज़ का। लेकिन हम इसके हर लफ्ज को अलग अलग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें मैं उससे चाहता हूँ कि फार्मूले निकाल निकाल के आपको सिखाऊं। जो मैंने आपको 45 फार्मूले सिखाने हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो आपको यहीं से सिखाऊं मैं। फिर उसके बाद हम तर्जुमा करते जाएंगे, फिर आप एक एक रुकू पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम एक एक लफ्ज पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने सबक की तरफ वापस, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखो ये क्या हो रहा है। आऊज़ो को जरा देखें। ये जो अना है ना, अना, इससे जो हम हर्फ निकालते हैं वो है हमजा, ये वाला हमजा। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, बजाय इसके कि हम पूरा लफ्ज लिखे अना आऊज़ो, हम सिर्फ हमजा को ले लेंगे और लफ्ज बन जाएगा आऊज़ो। यानी हमजा वर्ब के शुरू में आ जाए तो ये अना के लिए होगा, यानी मैं। हम तर्जुमा करेंगे मैं। अंता को देखें तो अंता से हमने हर्फ निकाला है, इसका सिंबल निकाला है ता। तो आप शुरू में देखें अलिफ को निकाल दे, चूंकि अब अना नहीं है बल्कि अब है अंता, तुम। तो ता जबर ता आ जाएगा अलिफ की जगह, ताऊज़ो।
तुम पनाह मांगते हो, तर्जुमा चेंज हो गया, ताऊजो तुम पनाह मांगते हो। हुआ आता है, हुआ के लिए हमने जो हर्फ लिया है वो है या। अब हुआ के अंदर या नहीं है, लेकिन बाद में आ जाएगा, आप देखेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं, हम समझते हैं भाई हमने हुआ के लिए एक हर्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए या ले ली है, या। अब या आया करेगा तो इससे मुराद होगा हुआ, यानी वो। याऊजो, अब या चेंज हो गई है, ता के बदले में हमजा की जगह पे आ गई है, दोनों नहीं हो सकते। अच्छा, ये हुक्म याद रखें कि हमने और किसी लफ्ज को या हरकत को, जबर जेर को भी चेंज नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिएगा, हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते सिवाय इस पहले हर्फ के जो कि रिप्रेजेंट करता है बंदों को। तो हुआ के लिए याऊजो, वो पनाह मांगता है। फिर है नहनो, हम पनाह मांगते हैं। नहनो से हमने नून निकाला है, नून। तो आप कुरान मजीद में ये 4 लफ्ज देखा करेंगे कि वर्ब के शुरू में आया करेंगे, और हम जो है उसका तर्जुमा ऐसे करेंगे कि वो जो पहला हर्फ होगा उसको देखेंगे कि वो किसके लिए है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस वैसे तर्जुमा कर दिया करेंगे। जैसे हम लोग आऊज़ो क्या तर्जुमा करते हैं, मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, ऐसे हम कहते हैं। मैं कहाँ से आ गया, ये हमजा से आ गया हमारे साथ। अच्छा, अगर आपको ये अलिफ ता या नून याद नहीं रहता कि यार ये क्या क्या मैंने हुरूफ क्या क्या निकालने थे, आपने अतैन का लफ्ज याद रखना है। अतैन, अलिफ ता या नून, अतैन, बस याद रखें, ये अतैन कम से कम याद रखें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा ना कि अना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमजा, हमजा रिप्रेजेंट कर रहा है अना को, ता रिप्रेजेंट कर रही है अंता को, या रिप्रेजेंट कर रही है हुआ को, और नून रिप्रेजेंट कर रहा है नहनो को। इसी तरह अतैन सारा मिला के रिप्रेजेंट करता है फेल हाल को, प्रेजेंट टेंस को। आप याद रखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अरबी जुबान बहुत आसान है, कि इसमें टेंस सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2, एक माजी है और एक हाल है। आज मैं अगर आपको हाल सिखा रहा हूं तो इसका समझ लें कि आधे टेंसेस आपने सीख लिए। अगर आपको ये अतैन याद हो गया और आप अतैन को समझ गए, आपने पूरे आधे टेंसेस सीख लिए हैं। बस इसमें, इसके अलावा आपको मैं हल्का हल्का सा चेंज करके देता रहूंगा, वरना तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एक दफा एक और आपको स्लाइड से अब वो समझाता हूँ, ये देखिए। पहले मुजारे, हाल और मुस्तकबिल, यानी मैंने कहा माजी तो अलग हो गया ना, अब मुस्तकबिल और हाल के लिए एक ही लफ्ज आएगा और वो है अतैन, शुरू में होगा, बस अतैन होना चाहिए, अलिफ ता या नून, ये वर्ब के शुरू में होना चाहिए। तो अना के लिए हमजा है तो आऊज़ो, मैं पनाह मांगता हूँ, अंता ताऊज़ो तुम पनाह मांगते हो, हुवा याऊज़ो वो पनाह मांगता है, नहनु नाऊज़ो हम पनाह मांगते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, आपका दोनों एक साथ ही हैं। अब कुरान मजीद में एक और लफ्ज आपको मिलेगा, नअबुदु इय्याका नअबुदु। तो आपको अगर मैं ये लफ्ज दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, मैं अगर आपको ये लफ्ज दे दूं इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं आपको ये लफ्ज दे दूं फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपने शुरू का जो हर्फ है वही तो चेंज करना है और तर्जुमा आपको आ जाएगा। अगर नअबुदु का तर्जुमा सिखा दूं तो आपको 3 लफ्जों का कुरान मजीद में जो होंगे वो आपको पहले से इसका तर्जुमा आता होगा। जैसे मैं कहता हूं नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब मैंने तर्जुमा किया हम इबादत करते हैं, ये क्या तर्जुमा मैंने कैसे किया? 2 वजूहात है, देखो, एक तो नून आ गया शुरू में, नून आता है हम के लिए आता है, हमने हम इबादत, हम इबादत। अब करते हैं के लिए कहां से आ गया? हमने कहा भाई जहां अतैन आएगा वर्ब के शुरू में उसका तर्जमा हमने हाल में करना है, तो बस हो गया, नअबुदु हम इबादत करते हैं। अब चेंज कर दो, यहां से आ जाओ, अना अअबुदु मैं इबादत करता हूं, अंत तअबुदु तुम इबादत करते हो, हुवा यअबुदु वो इबादत करता है, नहनु नअबुदु हम इबादत करते हैं। अस्ताईन, आपने तो कुरान मजीद में सिर्फ नस्ताईन देखा है, नस्ताईन आपको ये बहुत देखने को मिलेंगे, नून से शुरू होने वाले प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो बहुत दिखाई देंगे आपको। तो नस्ताईन को मैं अस्ताईन कर रहा हूं, मैं मदद मांगता हूं, तस्ताईन तुम मदद मांगते हो, अंत तस्ताईन है असल में, इसके अंदर अंता छुपा हुआ है। हुआ यस्ताईन वो मदद मांगता है, नहनु नस्ताईन हम मदद मांगते हैं।
अना अस्तगफिर, ये काफ ज़बर का छोड़ दो, इसको खत्म कर दो। तो मैं कहूँगा अना अस्तगफिर, मैं मगफिरत मांगता हूँ। अंत तस्तगफिर, तुम इस्तिग़फ़ार यानी तुम मगफिरत मांगते हो। यस्तगफिर हुवा यस्तगफिर, वो इस्तिग़फ़ार मांगता है यानी वो मगफिरत मांगता है। नहनु नस्तगफिर, हम मगफिरत मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, बख्शिश। इसी तरह आपने देखा होगा कि नो का लफ्ज बहुत देखा होगा आपने, नो, हम ईमान लाते हैं। ओमेनो, देखो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा सिवाय हर्फ के, अतैन को चेंज कर रहा हूं बस। तो हमजा पेश पेश है, तो ओमेनो, मैं ईमान लाता हूँ। अंता तो ओमेनो, तुम ईमान लाते हो। हुआ युमिनो, वो ईमान लाता है। नहनु नुमिनो, हम ईमान लाते हैं। इसी तरह ये देखें, आपको तीन हर्फ मिल गए, जैसे फे आइन लाम है या फा आइन लाम है या फिर रा और हा मीम है। तो देखो अना अफ़अलो, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ। अंता तफ़अलो, तुम करते हो। हुआ यफ़अलो, वो करता है। नहनु नफ़अलो, हम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने ये भी लिखा हो अना अंता हुआ नहनु, जैसे आऊज़ु के शुरू में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आऊज़ु बिल्लाहि, तो आप शुरू में तो अना नहीं लिखा हुआ, लेकिन छुपा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर है अना, क्योंकि ये अलिफ है ना, अलिफ अना को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले से। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं कहूँ, ये जरा तर्जुमा करेंगी हमारी हिरा, करेंगी हिरा, जरा इसका तर्जुमा करो। अम, अना अरहमो, मैं रहम करता हूँ। अंता तरहमो, तुम रहम करते हो। हुआ यरहमो, वो रहम करता है। नहनो नरहमो, हम रहम करते हैं। क्या बात है जी, 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक। चले, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैं चाहूँगा ये मुनीबा भी करे ज़रा। मुनीबा, आपके लिए क्या लफ्ज़ है, ये देखिए ज़रा। ये एक लफ्ज़ है अनाम, अनाम से मुराद है मैं सोता हूँ, नौम से निकला है, नौम, सोना। अना अनाम यानी मैं सोता हूँ या सोती हूँ। जी मुनीबा, इसको ज़रा मुकम्मल करो। आनाम, मैं सोती हूँ। तनाम, तुम सोती हो। यनाम, वो सोता है। ननाम, हम सोते हैं। हाँ शाबाश। और ये अगर अब ज़मीरों के साथ फिलहाल यानी शुरू में ना, अगर ज़मीरों के साथ याद करेंगे ना, तो आपकी अरबी भी अच्छी हो जाएगी। ज़मीरों के साथ अगर याद करेंगे, जैसे अना अनाम, अंत तनाम, हुवा अना, यनाम, नहनु ननाम, आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है हमारे पास है जलसा, यानी कि बैठना, बैठ, जुलूस कहते हैं बैठने को। ये कौन करेगा जरा मैं देखूं, हरमैन करेगी, हरमैन बताओ जरा। अगर मैं कहूँ अना अजलिसु, तो क्या तर्जुमा करूँ? मैं बैठती हूँ। हाँ अंता तजलिस, हाँ हाँ, तजलिस, तुम शाबाश बैठते हो। शाबाश। नैनु तजलिस, यजलिस, वो बैठ, हाँ हुआ यजलिसु, वो बैठता है, आगे। नहनु यजलिस, हम बैठते हैं। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। और दानिश भाई को भी आता है माशाल्लाह से, तलहा को भी आता है, दोनों को। अच्छा, अना अमशी, मोहम्मद अली साहब भी आ गए हैं आधे घंटे बाद, लेकिन चले वो भी सफर में है तो कोई मसला नहीं। अना अमशी, मैं चलता हूँ, अमशी मैं चलता हूँ। अंत तमशी, तुम चलते हो। हुआ यमशी, वो चलता है। नहनु नमशी, हम चलते हैं। नहनु नमशी, हम चलते हैं। और बाकी छोड़ दें, बाकी बहुत मुश्किल है, कुरान मजीद में नहीं है। अच्छा जी, तो ये था हमारा ये आज का जो लेसन था, आऊज़ो के हवाले से, कुरान मजीद के तर्जुमे के हवाले से। हमने आऊज़ो का तफसील से जो है वो इसको पढ़ा हमने कि ये आऊज़ो लफ्ज़ निकला कैसे है, और कुरान मजीद में मुझे कितने लफ्ज़ मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, यह है आऊज़ो, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। अना सबके लिए है, औरत हो या मर्द हो, अना सबके लिए बराबर है। और नहनो भी बराबर है, नहनो, अना और नहनो मर्द और औरत दोनों के लिए है।
اسی طرح اگر اس میں انا کی علامت جو ہے وہ میں کے لیے ہے. اچھا جی، پھر ہے اس کا مادہ ہے عین وہ اور زال، جس سے بننے والے کیا الفاظ ہیں؟ 7 الفاظ ہیں. یہ جو اعوذ لفظ ہے نا، اعوذ کہتے ہیں پناہ کو، پناہ کو، عین وہ اور زال، اس سے 7 قسم کے لفظ بنے ہیں. 7 قرآن مجید میں وہ 17 بار آئے ہوئے ہیں. اچھا، جب بھی اتین آیا کرے گا ترجمہ ہم لوگ فعل حال میں کریں گے، بس ہم نے یہ سیکھنا تھا. اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں دعائے قنوت. جن لوگوں نے کیا ہوا آلریڈی ہمارے ساتھ وہ تو چھوڑ دیں، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ضرور کریں اس کو. ٹھیک ہے، اگر ہے تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. اگر آپ دعائے قنوت کو دیکھیں گے نا احباب، تو آپ کو دعائے قنوت میں ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے یہ لفظ جو نحنو کے ساتھ بنتا ہے. اور جیسے میں کہتا ہوں اللہم انا نستعینکا، تو کا کو چھوڑ دیں، جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کا چھوڑ دیں، نستعین کو دیکھ لیں، صرف نستعین کو. تو نستعین کا معنی ہوتا ہے ہم مدد مانگتے ہیں. آپ نے اس کے 4 بنا دینے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کے بعد ہے کیا ہے؟ نشکرکا، تو نشکر ہم شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے 4 بنا دینے ہیں، انا اشکر، انت تشکر، ہوا یشکر، نحن نشکر. اسی طرح آپ کے سامنے آئے گا نکفرو، تو نکفرو کا بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، انا اکفر، میں انکار کرتا ہوں، انت تکفر، وہ انکار کرتا ہے، نحن نکفر، ہم انکار کرتے ہیں. یہاں دعائے قنوت پتہ نہیں مجھے کہیں مل جائے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اللہ کرے مل جائے. میرے پاس ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر الفاظ جو ہیں وہ کہاں کہاں آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو گوگل پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ کاف زبر کا چھوڑ دیں آپ، یہ کاف زبر کا چھوڑ دیں، کاف زبر کا چھوڑ دیں، آپ صرف اس کا کریں نستعین، مدد، ہم مدد مانگتے ہیں. نستغفر ابھی میں نے بتایا آپ کو، نؤمنو بھی ابھی بتایا آپ کو. اسی طرح نتوکل اگر ہے، نتوکل ونتوکل علیکا، تو نتوکل کا معنی کیا ہوگا؟ ہم توکل کرتے ہیں. اچھا، اس کے 4 بنا دیں ذرا، مجھے کوئی 4 بنا دے، کوئی بھی بنا دے آپ میں سے احباب. 4 کیسے بنیں گے؟ سر میں بنا دوں. جلدی سے بنائیں بس. انا نوکلو. غلط 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 غلط. نو نو نو، سوری سوری فارمولا سوری. یہ ہے، دیکھو میں نے کیا کہا فارمولا، میں دوبارہ بتا دیتا انا ہوں. ابھی میں نوکلو. ایک منٹ لڑکی، میں فارمولا بتا دوں آپ کو. دیکھو فارمولا یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو چینج نہیں کرنا سوائے ایک اتین کے، بس اتین کا حرف چینج کر سکتے ہیں، باقی آپ نے کسی لفظ کو نہیں چھیڑنا. یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی. چلے ہاں اب جی. نوکلو. غلط میں غلط 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 غلط، لڑکی چھوڑ دو بس. اب یہ انا ذرا اتوکل. ہیرا انا بتاؤ، ہیرا بتاؤ منیبا کو. انا اتوکل، شاباش، انت انا تتوکل. اتوکلو، میں صرف نون کو چینج کر سکتا ہوں، باقی تو مجھے حق ہی نہیں ہے. انا اتوکلو، انت، تتوکل، ہاں ہاں، ہوا، یتوکل، نحن شاباش. نتوکل. ہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، اور یہ ہمیں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے. چلو بھائی آ جاؤ بھائی، اپنی منیبا یہ ذرا کر دو. نسنی، ہم ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تو اس کو ذرا بنا دو، مجھے 4 بنا دو. انا حسنی، ہاں انت تسنی، ہوا یسنی، نحن نسنی. کیا بات ہے منیبا، کیا بات ہے، یہ تو مزہ نہیں آیا، یہ آپ نے سارے ٹھیک کر دی. یہ تو آپ کو چھیڑنے کا ہی مزہ ہے. لیکن نشکرو، نشکرو تو ہم نے کیا ہوا ہے، انا اشکرو، انت تشکرو، ہوا یشکرو، نحن نشکرو. نکفرو، ہاں یہ بھی ہم نے ابھی کیا. اچھا، نخلعو کا معنی، اچھا کفر کا معنی 2 معنی قرآن مجید میں آئیں گے. ایک ہے کفران نعمت یعنی انکار کرنا، اور ایک معنی ہوگا ہمارا کفر کرنا، جو کفر کرنا ہوتا ہے اللہ رسول کو نہ ماننا. اچھا جی،
नखलाऊ का मतलब होता है उतारना, अलग कर देना, ये कुरान में आएगा, ठीक है, नखलाऊ, तो हम उतारते हैं जी, इसका जरा करें। कोई भी करे, कोई भी करे जी, स्पीड। नखलो ऑलरेडी सर, नखलो है अना के साथ शुरू करो ना, अना के साथ शुरू करो, हाँ। ना, अखलो, अना अखलो, अंत तखलो, या हुआ यखलो, नानु नखलो। क्या बात है लड़की, क्या बात है। और कोई करेगा मेरे ख्याल में, ये हरमैन, हरमैन जाग जाओ थोड़ी सी, हरमैन हरमैन हरमैन। जी सर। नत रुको, हम छोड़ते हैं, शुरू करो जरा, अना शुरू। सर क्या? अन क्या, हाँ क्या, क्या, सही कह रहे हैं आप, क्या, बहुत अच्छा सवाल है, अवार्ड, सवाल बिल्कुल ठीक है अवार्ड। आपका, क्या, सवाल तो ठीक है, आप जवाब भी तो दे रहे हैं। मैं आपकी क्लासेस ऐसे लेता हूँ क्या? अरे सर वो उस मोबाइल में अरे नेट क्या, का। अरे क्या, अरे बस सिर्फ बहाने ही बहाने। चलो जी छोड़ दो यार, ये हमारे पास है, चल हवाई जरा करें आप, नत रुको, अना, अना अत्रुकु अंत तत्रुकु नहनु हुवा यत्रुकु नहनु नत्रुकु। शाबाश। अच्छा, ये फुजूरो, ये फुजूर क्या होता है? गुनाह होते हैं, नाफरमानी। तो अना अफजुरो, कोई आप चेंज नहीं कर सकते, अना अफजुरो, मैं फुजूर करता हूँ, गुनाह करता हूँ, और तुम करते हो, अंत तफजुरो हुवा यफजुरो नहनु नफजुरो। इसी तरह नअबुदु आ गया, नुसल्ली, अना उसल्ली अंत तुसल्ली हुवा युसल्ली नहनु नुसल्ली। इसी तरह है, अना असजुदो अंत तसजुदो हुवा यसजुदो नहनु नसजुदो। तो ये चार पक्के हैं। नसआ, ठीक है, ये भी आसान है। नसआ का मतलब होता है सई करना, कोशिश करना, दौड़ना, खिदमत करना। तो ये सारे माने आप देखेंगे। नहफिदो, हम खिदमत करते हैं, खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। तो अना अहफिदो अंत तहफिदो हुवा यहफिदो नहनु नहफिदो। अच्छा, आगे क्या है? नरजू, रजा से, इसका मतलब होता है उम्मीद। तो अना अरजू अंत तरजू, मैं उम्मीद करता हूँ, तुम उम्मीद करते हो, नहनु नरजू। हाँ शाबाश, ये इस तरह लिखेंगे। नक्शा, अना अख्शा, मैं डरता हूँ, अंत तख्शा हुआ यख्शा नहनु नक्शा। बस ये थे हमारे अल्फाज। अब करना क्या है, अब अहबाब आप लोगों ने, कि आप लोगों ने सिर्फ यही दोबारा ये सारे अल्फाज जो मैंने अभी कहे हैं और ये दुआ कुनूत के, ये आपने दुआ कुनूत लिखना है। दुआ कुनूत नीचे लिखे फेले मुजारे। मुजारे का आपको समझ आ गई है कि मुजारे किसे कहते हैं? मुजारे का मतलब होता है, ये देखो, मुजारे ऐसे लिखेंगे हम लोग। मुजारे का मतलब होता है हाल और मुस्तकबिल, ये दो टेंसेस को मिला के जो टेंस बनाया है अरब लोगों ने। उर्दू में भी ऐसा ही है, उर्दू में भी मुजारे कहते हैं। तो ये एक लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, एक ही फार्मूला है, इसलिए इसको मुजारे कहते हैं। आप नीचे सारे हरूफ निकाल के लिखने हैं बस। और ये काफ ज़बर का छोड़ दें, उसमें काफ ज़बर का नहीं चाहिए, ये आपका काम है। और पहले पारे में जाके देखें, अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो पहले पारे में जाके देखें कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि यार ये तो अतैन में है, ओ ये तो है, ये तो है। मैं अगर पहला पारा निकालता हूँ यहाँ पे आपको, मेरे पास ये पहला पारा है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या निकाला आपको, अब तो आऊजो निकाला, आऊजो। फिर दूसरा है ना अबुदो, ये निकाला। अब ये इसको मैं चूंकि यहाँ पे आपको सख्त से नहीं कह रहा, क्योंकि अल्फाज आपको समझ नहीं आएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, तो इसलिए मैं इसको सख्त से नहीं कर रहा। लेकिन जो भी जितना कर सकता है, समझदार है, तो वो ज़रूर करके दिखाए। हम्म, ये अभी फिलहाल आपको ये कुरान छोड़ दें, बस वो जना वही करें आप लोग, ये छोड़ दें, ये बाद में आपको मैं जब कल हम पढ़ेंगे ना, कल ये आज खत्म करिए एक के साथ, ठीक है? आपने पक्का इसको याद कर लेना, क्योंकि कल मैं आपको नया फार्मूला दूंगा, तो ऐसा ना हो कि फिर आप कल कंफ्यूज हो जाए। तो आपने आज का जो सबक है वो पक्का याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी करना चाहूँगा, ये आपका ये तर्जमा जो है ये भी कल मुकम्मल करना चाहूँगा, तो इसलिए मेरे साथ ये एक दो आयात पढ़ लें, कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लें, ताकि आपको आसानी हो। और एक मैं आपको एक पैराग्राफ आपको उलूम कुरान का भी आपको बताना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पर आप लफ्ज़ तर्जुमा हमने कल किया था, मालिक यौमिद्दीन तक किया था हमने। तो मालिक यौमिद्दीन से अगर मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ आएगा ईया का। ईया का दो लफ्ज़ हैं, हम बाद में जाके देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल अब इसको एक ही लफ्ज़ समझो।
इय्याका का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तेरी, यू अलोन, इय्याका, नअबुदु, वी वर्शिप, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और सिर्फ तेरी ही, नस्तईन, हम मदद मांगते हैं, इहदिना, हमें हिदायत दे। हिदायत का मतलब होता है रास्ता दिखाना या फिर मंजिल तक पहुंचाना। अल्लाह ताला दोनों करता है, कुरान मजीद आपको दोनों करता है, रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक पहुंचा देता है आपको। इहदिना, हमें हिदायत दे, अस्सिरात, रास्ता, सिरात कहते हैं रास्ते को, इंग्लिश में कहेंगे पाथ, गाइड अस टू द पाथ, अल मुस्तकीम, द स्ट्रेट, सीधा, मुस्तकीम उर्दू का लफ्ज है और अरबी से लिया हुआ है, मुस्तकीम यानी कि सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। बस यहाँ तक का, इससे मैं आगे नहीं बढ़ता। जब मैं आपको तर्जुमा दिखाना चाहता हूँ, जरा ये देखें लोगों ने तर्जुमा कैसे किया है। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब देखा 4 लफ्ज हैं उर्दू में, इसका मतलब है अगर हमारे पास 2 सफ़हात की किताब होगी तो उसके 4 सफ़हात बन जाएंगे उर्दू में। व इय्याका, और तुझसे ही या तेरी ही, वही ऊपर वाला तर्जुमा नीचे भी लिख दो, तेरी ही, नस्तईन का तर्जुमा हम क्या करेंगे, यहाँ बताओ क्या गलती की है? गलती तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, आप अगर तर्जुमा करते तो क्या करते यहाँ पे नस्तईन का तर्जुमा? हम मदद मांगते हैं। हम मदद हम मांगते हैं, हम हम यहाँ लिखते हैं, हम नून का तर्जुमा यहाँ नहीं है ना, तो हम यहाँ पे हम होगा, हम मदद मांगते हैं, और तेरी ही हम मदद मांगते हैं। तो ठीक है, वैसे आप ये समझाने के लिए तर्जुमे होते हैं, ये कोई कुरान मजीद नहीं है। अच्छा, एह देना, दिखा हमको, उन्होंने कहा दिखा हमको, या बाज़ औक़ात आपको दिखाई देगा चला हमको, तो दोनों ठीक है, दिखा हमको, या मैं कहूंगा पहुंचा हमको, अस्सिरात, रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा। ये तो तर्जुमा था तहरीक आसान कुरान का। ये यहाँ देखिए इन्होंने क्या तर्जुमा किया है रफीक साहब ने, वो कहते हैं इय्याका, सिर्फ तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और सिर्फ तेरी, देखो वही बात आ गई, ठीक है ना, ये वो का तर्जुमा बढ़ गया बस सिर्फ, और नस्तईन, हम मदद चाहते हैं या मांगते हैं, तलब करते हैं। उर्दू में तो सारे अल्फाज ठीक है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एह देना, हिदायत दे हमको। अब देखें यहाँ तर्जुमा हिदायत लिखा, चूंकि हिदायत भी उर्दू का लफ्ज है। अस्सिरात, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे की, ठीक है। यहाँ देखिए मौदूदी साहब ने क्या तर्जुमा किया, इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझसे ही, नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। देखा पूरा तर्जुमा। एह देना, दिखा हमें, ये हमें कहाँ से आ गया, ये ना से आया है। अस्सिरात, रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा। एक और तर्जुमा ये भी देखिए जरा, ये किंग सलाहुद्दीन साहब का तर्जुमा है। कहते हैं कि इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझसे ही, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। शानदार शानदार। बस ये तर्जुमे थे, बहुत सारे तर्जुमे हैं, आप उसमें से कोई भी चूज कर लें। आपको ये सब समझाना था कि अगर तर्जुमा आपको कहीं और बदल बदल के भी आ गया तो यूं समझ के रखें कि कुरान मजीद नहीं है ये, बल्कि ये तर्जमा है, मफहूम समझाने की कोशिश करते हैं वो लोग आपको। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये थोड़ा सा जो है ना, उन्होंने तशरीह की है कुरानी अल्फाज की, और शुरू में उन्होंने जो है वो दिया हुआ है, ये उलूम कुरान का एक हिस्सा दिया हुआ है। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है आज के मौजू के हवाले से, और वो मौजू है कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल, थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल हुआ कुरान मजीद। ये जरा सुनिएगा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पहले तो ये देखें कि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि के बाद व आलिहि का हमेशा जो है एहतमाम रखें। क्यों? चूंकि दुरूद शरीफ का जो हुक्म है कुरान मजीद में मौजूद है, ठीक है, वाजिब है सब पे दुरूद शरीफ। फिर दुरूद का तरीका हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मेरी आल को भी मेरे साथ शामिल करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो वह आलिहि हमेशा यहाँ लिखा करें। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि ये दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम हुक्म को पूरा कर रहे हैं कि सलात भेजें, सलाम भेजें मेरे हबीब पे, तो हम हुक्म को पूरा करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि अव्वलीन ता आखिरीन,
1400 साल में जितने भी मुफस्सिरीन और मुतकल्लिमीन और जितने भी मुहद्दिसीन आए, सब ने ऐसे लिखा। तो आप बुखारी शरीफ को निकाल के देखेंगे तो वहां भी ऐसे दुरूद शरीफ लिखा होगा। तो आपको मैंने मुकम्मल दुरूद बता दिया कि सलात और सलाम होना चाहिए और रसूलुल्लाह के साथ उनकी आल पे भी होना चाहिए, बस ये ज़हन में रखिएगा। पर कुरान मजीद दफ़अतन, दफ़अतन का मतलब क्या है? अचानक और एक साथ, और एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुआ है। ये याद रखें, कुरान मजीद एक साथ नाजिल नहीं हुआ है। यार हुआ है, कुरान मजीद नाजिल हुआ है ना। कहाँ नाजिल हुआ? लोहे महफूज पे एक साथ नाजिल हुआ, उसके बाद फिर लोहे महफूज से नीचे आया जमीन आसमानी दुनिया पे, वहां भी एक साथ आया, वो था लैलतुल कद्र की रात। तो एक तो वो एक साथ आया, लेकिन हम बात कर रहे हैं तीसरे नुजूल की, जिसमें आपके कल्बे अतहर पे ये कुरान मजीद उतरा। तो वो जो नजूल हुआ वो एक साथ नहीं हुआ, एक साथ नहीं हुआ, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया है। क्यों? अच्छा, बाज़ औक़ात जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अब देखें ये जिब्राईल जो है ये फरिश्ता है। जिब्राईल, जिब्राईल जो है, वल जिब्रील, हाँ, वल मीकाला, ये जो जिब्राईल है इनके नाम के साथ हम लिखते हैं अलैहिस्सलाम। इससे हमें ये पता चलता है कि हम गैर नबी के लिए भी अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी नहीं भी होगा ना तब भी हम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये फरिश्ते हैं। इसी तरह जो मरियम है, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं। हवा पैगंबर नहीं है, हवा अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, ठीक है। तो गैर नबी के लिए भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। इसी तरह कोई आपको कहे कि वो जो है ना वो रिजवान आपको सलाम कह रहा था, तो आपने कहना है अलैका, तुम पर, व अलैहिस्सलाम, और उस पर भी सलाम हो, तो कह सकते हैं। एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत का कोई एक जुज लेकर भी तशरीफ ले आते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और बाज मरतबा कई कई आयतें बैक वक्त नाजिल हो जाती। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो तक मुस्तकिलन क्या है नाजिल हुआ, वो क्या है? वो क्या है? गैरु उलिद दररी। ये इनके मुताबिक है कि जो एक तवील आयत का टुकड़ा है, ठीक है, दूसरी तरफ पूरी सूरह अनआम, सूरह अल अनआम पूरी एक दफा ही नाजिल हुई है। अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं, ठीक है, यानी छोटे से छोटा भी आया कुरान मजीद, कम से कम भी आया और ज्यादा से ज्यादा भी आया। मोहम्मद अली गया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आता है कौन जाता है, जरा मुझे पता होना चाहिए। तो अच्छा, सारे कुरान करीम को एक दफा नाजिल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया? ये सवाल खुद मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। बारी ताला ने इसका जवाब खुद खुद फरमाया, खुद जवाब दिया। ऐसे भी होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई भी सवाल करता था ना, अल्लाह ताला खुद उसका जवाब देते थे। अब देखो ना, ये अबू लहब है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुछ बुरा कहा, रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया। आपको कहीं किसी सीरत की किताब में दिखाई नहीं देगा कि रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद उतार दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नुमाइंदे हैं, नाइब हैं, अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, हबीब हैं, रसूल हैं, भेजे हुए हैं। अल्लाह पीछे है, तो अल्लाह पाक ने जो है वो फौरन दिफा करना होता है, फौरन बताना होता है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? और ये काफिर लोग कहते हैं कि इन पर सारा कुरान एक ही दफा में क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया? ए पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि इसके जरिए तुम्हारा दिल मजबूत रखें, इन्हें आपका दिल को तसल्ली मिलती रहे। जिब्राइल आते रहेंगे, सलाम भेजते रहेंगे, मेरा सलाम आता रहेगा, सुबह शाम आता रहेगा, इसलिए आपका दिल जो मजबूत रहेगा, तवानाई मिलती रहेगी आपको। और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है आपसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुद फौरन फौरन पढ़ा करते थे याद करने के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया आप मेरे हबीब हैं, आप बिल्कुल आराम से रहें, ये हमारा काम है आपको याद करवाना। ये क्या खूबसूरत मोहब्बत की बातें हैं अल्लाह पाक के अपने रसूल के साथ। हमारा काम है आपको समझाना, सिखाना, याद करवाना। सनुक़रिउका फला तंसा, ऐसा याद करवाएंगे आपको, आपको नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा आपको। और हमने फिर तरतील के साथ पढ़वाया इसको। मजा तब है कि तरतील के साथ जो है अल्लाह ताला से कलाम किया जाए। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें उसका ठीक ठीक जवाब और ज्यादा वजाहत के साथ अता कर देते हैं। हम है ना। वाह। इमाम राजी ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम की तदरीजी तदरीजी यानी दर्जा बदर्जा नुज़ूल की जो हिकमतें बयान फरमाई है, यहाँ उनका खुलासा समझ लेना काफी होगा। जरा सुनिएगा कि क्यों
थोड़ा नाजिल हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी का मतलब अनपढ़, ठीक है, अनपढ़, यानी कि रसूलुल्लाह ने किसी बंदे से नहीं पढ़ा था। याद रखें, रसूलुल्लाह को किसने पढ़ाया? अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? रसूलुल्लाह को सिखाया। तो जिसको अल्लाह सिखाए, आप समझ सकते हैं कि वो किस दर्जे का जो है वो जो है वो बंदा होगा, कि वो उम्मी का लफ्ज जो है, उम्मी आता है अनपढ़ के लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि रसूल के उम्मी होना जो है वो उनके शर्फ है, उनके लिए इज्जत है। क्यों है वो आगे बताता हूं मैं आपको। अच्छा, लिखते पढ़ते नहीं थे, इसलिए अगर सारा कुरान एक मरतबा नाजिल हो गया होता तो उसका याद रखना और जब्त करना दुश्वार होता। अब मैं अदब के लिए कह रहा हूँ, ये तो इमाम राजी लिख रहे हैं, लेकिन मैं अदब के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि चूंकि सहाबा कराम उम्मी थे, चूंकि वो एक ऐसा मुआशरा था जिसमें पढ़े लिखे लोग कम थे, तो अगर सारा कुरान एक साथ ही नाजिल कर देते तो याद करना और जब्त करना उसका दुश्वार होता, मुश्किल होता। ये जरा ज्यादा बाअदब बात है, और हम इसको साथ रखेंगे इंशाल्लाह, यही याद करेंगे। इसके बरखिलाफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मरतबा नाजिल की गई है। अब याद रखें, अब आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी नबी का दर्जा बड़ा नहीं है, याद रखिएगा। चाहे वो अखलाकियात में हो, चाहे मोजज़ात में हो, चाहे वो कसरत उम्मत में हो, या चाहे अल्लाह ताला की मेहरबानियां हो, अल्लाह का फजल हो किसी पैगंबर पे, किसी के अल्लाह पाक के कोई भी एहसान हो, वो किसी भी पैगंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा। मूसा अलैहि सलाम पढ़े लिखे थे, यहाँ देखो ये बातें जरा हमने इसको हमने अदब के दायरे में रखनी है हमने। उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे हैं। अगर पूरा कुरान मजीद एक दफा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फौरन लाजिम हो जाती, और इस हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता जो शरीयत मोहम्मदी में मलहूज रखी गई है। देखो, अहकाम की पाबंदी फौरन लाजिम हो जाती। यार यहाँ तो अहकाम है ना, सहाबा कराम ने तो अगर कोई बात रसूलुल्लाह वैसी तारीफ में कर देते कुरान मजीद से, तो सहाबा कराम उस पर फौरन अमल करना जो है वो अपने ऊपर वाजिब समझते थे। वो क्या लोग थे, हर रसूलुल्लाह के हर कदम पे उन्होंने कदम रखा। तो वो अजीब मखलूक थी, वो अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन लोग थे वो लोग। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कहें नमाज पढ़ो तो वो फौरन नमाज पढ़ते थे, रसूलुल्लाह के पीछे खड़े होके। रोजा रखो, फौरन करते थे, जिहाद करते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, मैं हजरत तलहा का याद कर रहा हूँ कि जब कहा गया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, कि अगर तुम लोग वो चीज अल्लाह की राह में न दो जो तुम्हें खुद महबूब नहीं, जो तुम्हें महबूब है, वो चीज अगर ना दो अल्लाह की राह में, तो तुम्हारा जो तकवा है, तुम्हारा जो नेकी है तुम्हारी, वो अल्लाह को नहीं पहुंचती। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी मुझे ये बाग बहुत पसंद है, मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, फौरन के फौरन। देखिए आपने, ऐसे वो अमल करते थे। तो अब अगर कुरान मजीद एक साल नाजिल हो जाता तो ये बहुत मुश्किल काम होता, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। इसलिए जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया है। तलहा भाई तो हैं, कौन गया है? हरमैन गई है। अच्छा, तो दूसरी बात, मैं टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं एक बस ये खत्म कर रहा हूँ जरा। ये देख रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी कौम की तरफ से हर रोज नई अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी आपको बहुत। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना और उन अजियतों के मुकाबले को आसान बना देता था। आपको जब आते थे ना बार बार, आपको तकवीत कल्ब का बायस होता था आपके लिए। अल्लाह का सलाम भी आता था ना साथ में। अच्छा, कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ वाक़यात से मुताल्लिक था, इसलिए उन आयातों का नुज़ूल उस वक़्त मुनासिब था जब वो सवालात करते थे और वाक़यात पेश आते थे, तो तभी वो आयत नाजिल होती थी। इसलिए मुसलमानों की बसीरत इससे बढ़ती थी। कुरान करीम की गैबी खबरें बयान करने से इसकी हक्कानियत और ज़्यादा आश्कार हो जाती थी। तो आप मेन बातें याद रखो अहबाब, कि एक तो कुरान मजीद पे अमल करना आसान हो गया थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होने से। दूसरा, इसको लिखना आसान हो गया क्योंकि सहाबा कराम मौजूद थे। मक्का मुकर्रमा में 7 सहाबा कराम जो थे सहाबियात समेत, वो लिखा करती थी। तो एक तो वो है, लिखाई में भी आसान था। दूसरा था कि हिफ्ज करने में भी आसान था। रसूलुल्लाह को तो अल्लाह पाक ने हिफ्ज करवाया, सहाबा कराम को हिफ्ज तो रसूलुल्लाह ने करवाया। तो थोड़ा थोड़ा करके करवाते थे ताकि वो हाफिज कर जाएं, चीजों को हिफ्ज करते रहें साथ साथ। तो हिफ्ज करने के लिए, लिखने के लिए, अमल के लिए कुरान मजीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। और इसके साथ साथ जो है वो रसूलुल्लाह की दिली तकवीयत का बायस भी बनता था, ये थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद नाजिल करना। तो ये था आज का सबक जो हमने उलूम कुरान में से थोड़ा सा भी पढ़ा। बाकी आपने लफ्ज़ी तर्जुमा याद रखना है, चूंकि ये आपका उम्मीद है कि जल्दी एक टेस्ट लेंगे महीने के आखिर में, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमने क्या क्या कहा था। जो जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसी से, इन्हीं वीडियो से निकाल निकाल के पेपर बनाने हैं आपका इंशाल्लाह ताला।
फिर वो आप लोगों के सामने होगा इंशाअल्लाह। कोई सवाल है आज के इस पूरे लेक्चर में अहबाब? आसान है आपके लिए, ये आपके लिए आसान इसलिए है कि माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, तो ये बस ये जो हमारे कुरान मजीद वाले अहबाब हैं, आप जा सकते हैं, ठहरना चाहें तो ठहर जाएं, जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी तलहा, जी तलहा। नहीं सर, मैं सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाने के वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। लिए।